Okay, so students, up to physical distribution we have discussed. We need to start with the promotion, correct? Yes, sir. The promotion includes advertising, personal selling, sales promotion, and public relations. So out of these four, uh, today we shall discuss two things. Let me check it. Hope now without any disturbance you are able to see it. Yes, sir. Okay. So these are the four promotion mix which we have to discuss one by one. Now I would start with the advertising. There is no single day when you have not uh, seen any advertisement. Am I correct? Lot of time, whether it is Yes, television, of Yes, course. sir. Yes, sir. but you always see some kind of advertisement. True? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So it is the most commonly used tool of promotion. It is impersonal form of communication which is paid for by the marketeers, means the sponsor, to promote some goods or service. Right? So let us now understand that what are the features of advertising. Feature number one, it is a paid form. See, there is no advertisement which is free of cost. Whatever the advertisement you are seeing, I asked you yesterday that please bring a newspaper. Have you brought? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so can someone share it? I would be very happy to see that. Any one of you? Sir, advertisement. Yeah, no, no, newspaper which you have in your hand, please show it to. Put it on camera. Okay, let me put it in a spotlight for everyone. Yes. So you can see it easily, na? This hangame ke beech Vijay Sinha Vidhan Sabha Adhyaksh Nirvachit. This is what? Publicity. This is news. Correct? Now please come little below to this. थोड़ा और नीचे करो या दूसरा पेज. हाँ. Yes. Now छोटा दाम बड़ा काम. ₹10 में this Vaseline, ना? अब ये देखो ये क्या है, ये एडवर्टीजमेंट है ना? ठीक है, इसके बगल वाला ये थोड़ा दिखाओ, इम्यूनिटी और सेहत के लिए, है ना? ये क्या है? ये भी एडवर्टीजमेंट है. मेकिंग सेंस टू यू एवरीवन? Yes, sir. ओके. नाउ आप देखो ये जो एडवर्टीजमेंट है इसका हमें पता है कि किसने इस एडवर्टीजमेंट को स्पॉन्सर किया, कौन दिखा रहा है इसको, किसने इसके लिए पे किया है. हमें मालूम है ये डाबर का है और ये बगल वाला वैसलिन का है. हाँ या ना? करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, thank you. You can switch off your camera. And when again I would ask you to show me.
One more thing I need to Okay, sir. explain, and I would be asking you. Wait. Okay. Now, so it is a paid form. Second thing is it is impersonal, means there is no direct face-to-face contact between the prospect and the advertiser. Prospect means who will buy it. Advertiser means in this case it was Dabur, it was Vaseline. Correct? So there is a, there is no dialogue. Dialogue happens between two people. Like asking it to you, you are responding me. So there is a dialogue between me and you. So it is personal live class. But impersonal means something is being shown it from my side. Like on television, if I am taking this class, no, like earlier, I used to give you the video on YouTube. So when you are seeing on YouTube, you can't pause and ask me a question, but here you can do so. So advertisement is what? It is impersonal. Hope it is clear now. Yes, sir. Yes, sir. Identify the sponsor. Never ever you will see any such type of, say, advertisement where there is no one is being identified, means you do not know that who has given this advertisement. Never ever it will be possible. So always there is an identified sponsor. Correct? Who is bearing this cost of advertisement? Who is paying for this? Right? Who is the advertiser? Then what is the merits of advertising? A, mass reach. You can see it here. Like one communication given from your side and it is being seen by many people. Right? This advertisement which has been published in the Hindustan newspaper, how many people will see it? Only Supriya, or anyone can see it. No, Whosoever is sir. buying the Hindustan newspaper would be able to see it. So the reach of the advertisement is mass. Many people will come to know about it, right? It enhancing customer satisfaction and confidence. No, just imagine now you are going to buy this kind of, say, cream. You know, you are having some problem, like you are searching a lip balm, and you went to market. In the general store, you are seeing there are so many lip balm kept. The moment you will see Vaseline, immediately you will get a confidence to buy it. Yes or no? Because you have seen the advertisement. And if you have purchased it and you are seeing Yes, the sir. advertisement after buying it, then also it gives a kind of satisfaction to you. You agree with me? जो फोन हम यूज कर रहे हैं उसी फोन का जब एडवर्टीजमेंट आता है, जो कार हम यूज कर रहे हैं उसी कार का जब एडवर्टीजमेंट आता है, तो हमको और ज्यादा अच्छा लगता है. हाँ या ना? Yes, It sir. creates a confidence among the Yes, sir. prospective buyer, and those who have purchased it, they feel comfortable and they feel satisfied, right? अनदर इज एक्सप्रेसिवनेस. देखो, पर्सनल सेलिंग भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम अपना प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, बट वहाँ पे हम डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं. बहुत अच्छा है, हम ज़्यादा अच्छे से परसुएट कर सकते हैं. बहुत अच्छा है. बट व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेस, तो आपके पास में कितने तरीके हैं एक्सप्रेस करने के. आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, बोल सकते हो, दिखा सकते हो. बट व्हेन इट कम्स टू एडवर्टीजमेंट, देर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू शो इट. ना आप कितने तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हो. हाँ या ना? बोलो. Yes, Yes, sir. sir. तो हम एक want to show you something.
Can you see my screen? ये नथुराम का है क्या? हाँ दादी, नथु Is it visible? Sound is clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पिंकी पिंकी जी पापा। मम्मी को दे दो। समोसे? एक मिनट ये दादी के लिए। मेरी दवाई लाए? हाँ। ओए पिंकी, क्या है? दवाई। पिंकी जा पापा से पूछ क्या वो कितना लेंगे। पापा, आपको दो दूं? नहीं, एक ही देना और जरा चाय का भी देखना। हाँ हाँ, मम्मा बना रही है। ये नथुराम का है क्या? हाँ दादी, नथुराम के। ये लीजिए एप्पल। पता नहीं अब कैसे बनते होंगे। वैसे ही बनते हैं माँ, जैसे पहले बनते थे। पहले तो यूं बड़े बड़े बनते थे, असली घी में बनते थे, उसमें बादाम डाली हुई रहती थी। पता नहीं अब कैसे। पिंकी जी? एक टुकड़ा देना मुझे, थोड़ा चख लूं। कुछ नहीं मिलेगा आपको। एक टुकड़े में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या मतलब क्या हो जाएगा? उल्टा सुल्टा खाते रहती हो, तबीयत खराब करते रहती हो। हमें और कोई काम नहीं है? कभी चिक्की छुपा के खाती हो तो कभी भुजिया, चाहे लूज मोशन की नदियां बहती रहे। 100 बार सुना चुका है। अब बच्ची हो, कुछ समझ नहीं पाती हो। तू अकेला ही समझदार है, मुझे कुछ आता ही नाही, जैसे यही अकेला समझदार आहे. कुठे जायचं, काय करायचं काही कळत नाही. एकटा जीव म्हणतात सदाशिव, काय करायचं. जायला पण कुठे जागा नाही. ही मुलं सगळे मागे लागतात, हे नको खाऊ ते नको खाऊ. कुठे जायचं, कुठे उभं राहायचं, कुठे राहायचं. बेटे कल तुम्हें
So could you see this advertisement? Yes, sir. What is being marketed? Which product is being marketed? Come on, tell me. Sir, help old age people. Huh? What old age people? What? They're like parents who get old, we should not send them to the orphanage. हाँ, लेकिन क्या क्या यहाँ पे मार्केट हो रहा है? What can be marketed? There is a list, na? I have shown you. Product can be marketed, service can be marketed. What is being marketed here in this advertisement? Samosa. Huh? Open your book and see what can be marketed. There is a box. I have shown you on my PPT also. You remember? Sir, ideas. Yes, 100% correct. Idea is being marketed. And here they see you have opportunities to express yourself. You know, through this medium, how easily it has been communicated the message. You agree with me? So expressiveness Yes, is sir. there. You can express anything. Okay. Then comes the economy. In a very less cost, you can communicate to more people. No? When you calculate it per unit cost, it is very less. So economy, Yes, sir. एडवर्टाइजिंग, मैं एक ऐड बनाया, उसको देखो कितने लोग देख रहे हैं, है ना? जिसने ऐड बनाया उसने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि in one of the class of Sanjay sir would be telling it to the students of class 12 commerce, isn't it? But this is being, Yes, sir. He wouldn't have thought that. then what is the limitations of advertising? There are some limitations also. It is less forceful. Like many time it happens that we do not watch advertisement. जैसे ही कोई प्रोग्राम चल रहा है, ऐड आता है, हम रिमोट से हटा देते हैं उसको, है ना? तो इतना फोर्स नहीं होता. हाँ, पर्सनल सेलिंग में बहुत फोर्सफुली हम बात बोल सकते हैं क्योंकि हम सामने होते हैं, आमने सामने बात कर रहे होते हैं. नहीं, तो इट इज लेस फोर्सफुल. फिर फीडबैक नहीं मिलता इसमें. जैसे एडवर्टीजमेंट हमने दिखा तो दिया, लेकिन इसको बारे में अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो वो हम तक नहीं पहुंचता. राइट? इनफ्लेक्सिबिलिटी है. आप देखो अभी भी कुछ एडवर्टीजमेंट, कल ही मैं कोई एक एडवर्टीजमेंट देख रहा था, उसमें दिखा रहे थे कि दिस ईयर इन दिस दिवाली वी शुड डू दिस. यानी दिवाली वाला एडवर्टीजमेंट अभी तक चल रहा है. कई बार ऐसा भी होता है, कोई एडवर्टीजमेंट आता है कि इस दिन इतने बजे ये चीज दिखाई जाएगी, और वो भी अभी भी दिखाया जा रहा है ना? वो रिपीट टेलीकास्ट के लिए कभी वो भी होता है, कभी नहीं भी. क्यों? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नहीं है. जिसने ये एडवर्टीजमेंट बनाया होगा उसने 15 डेज का कॉन्ट्रैक्ट किया होगा टेलीविजन के साथ में कि आप 15 दिन इसको दिखाएंगे. अब ये 15 दिन बाद दिवाली खत्म हो गई, तब भी वही एडवर्टीजमेंट चल रहा है ना? क्योंकि इतनी जल्दी उस फिल्म को फिर से बनाना इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है. फिर इसका इफेक्टिवनेस बहुत कम है ना. सारे के सारे एडवर्टीजमेंट टारगेट पे हिट होंगे जरूरी नहीं है, कुछ इधर उधर भी जा सकते हैं, है ना? जो प्रोडक्ट हमें कभी यूज नहीं करना, कभी लेना नहीं, उसका हमें उस एडवर्टीजमेंट से क्या फायदा? नहीं? यस सर. कुछ लोग ऑब्जेक्शंस करते हैं एडवर्टाइजिंग पे कि ये अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ा देता है ना? हियर आई वुड लाइक टू गिव यू द एग्जांपल दैट विच प्रोडक्ट इज देयर विच मटेरियल कॉस्ट इज 10 पैसे to 12 पैसे, बट इट इज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट फॉर ₹12.
10-12 पैसे की चीज 12 रुपए में मार्केट में बिकती है क्या? कोको कोला। हाँ, प्राय सभी कोल्ड ड्रिंक, ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक होते हैं इनका मटेरियल कॉस्ट बहुत कम होता है, बट एडवर्टीजमेंट पे इतना ज्यादा खर्च करते हैं, इसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। फिर वो स्टोर करने का कॉस्ट, हाँ, ठंडा रखने का कॉस्ट, ये सब मिलके वो 12 रुपया हो जाता है। देन इट अंडरमाइन सोशल वैल्यूज। कुछ एडवर्टीजमेंट ऐसे होते हैं जो हमारे सामाजिक जो मूल्य हैं, हाँ, जो सोशल वैल्यूज हैं उसके खिलाफ होते हैं। जैसे ओके, लेट मी शो यू वन थिंग। ये वाली देखने आ रहे हैं पर माँ, हाँ, मेरी त्वचा। इज इट विजिबल? आई थिंक नो। बेटे नो मैम, नो सर। No, sir. वेट, नहीं ये तो वही चल गया, रुको। स्क्रीन विजिबल है? से यस यस। सर। यस 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 सर। सर। ओके, नाउ सी इट। बेटे कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं पर माँ, हाँ, मेरी त्वचा। दीदी इंस्टेंट फेयरनेस चाहिए तो ये लो। ये साधारण क्रीम असर दिखाए 5 दिनों में, पर बजाज CFL से पाइए बस 1 सेकंड में उजला गोरा रंग। बजाज CFL सब कुछ रोशन कर दे। Could you see this? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. One more advertisement. See this. Visible? नो सर। Okay. यस सर। स्टेशन का सीन है, ट्रेन है, एक बच्चा स्टेशन पे आया। अरे बबलू, यहाँ क्या कर रहे हो? सब गुस्सा करते हैं, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। मगर घर में तो मम्मी ने गर्मा गर्म जलेबियाँ बनाई है। जलेबी? तो क्या तय किया आपने? जाना तो है, मगर हाँ, मगर 20-25 साल बाद। अनोखी शुद्धता, अनोखा असर, धारा। So could you see these two advertisements? Yes, sir. Yes, sir. How does it undermine the social values? Now let us understand this. Screen shared or not? Okay. You know, when this advertisement was coming, long back it was coming when we were child. So many such type of news came that छोटे बच्चे जिनको घर में डांटा गया तो वो अपना घर छोड़ करके ट्रेन में बैठ करके कहीं दूसरे जगह चले गए। इस एडवर्टीजमेंट के कारण ऐसा हुआ, फिर इस ऐड को बैन कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। इसी तरह से जो इसके पहले तुमने एडवर्टीजमेंट देखा बजाज का बल्ब वाला,
वो क्या क्या मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है कि जो सांवले लोग होते हैं वो ठीक नहीं होते, गोरा होना जरूरी है ना, फेयर होना क्या जरूरी है शादी के लिए. सो सच ए रॉन्ग मैसेज इज बीइंग स्प्रेड थ्रू दिस. सो इट इज अंडरमाइनिंग आवर सोशल वैल्यूज. गेटिंग इट? तो कई बार एडवर्टीजमेंट से हमारे जो सोशल वैल्यूज हैं वो गलत तरीके से कम्युनिकेट होते हैं, जो नहीं होना चाहिए. समझ रहे बात को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. देखो इतना सब कुछ हमारे पास में एडवर्टीजमेंट देख देख करके हम सब कुछ खरीदने का सोचते हैं, तो फिर भी हम खुश नहीं हैं. और फिर अल्टीमेटली क्या होता है, इस एडवर्टीजमेंट से देख देख करके फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं एंड देन वी बिकम एडिक्टेड. आप देख ही रहे हो कितने सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज सब नशे वशे के उसमें फंस जाते हैं. ये सब ना हमें इस ऐसी जगह ये ले जाता है जहां हम बहुत डिमांडिंग हो जा रहे हैं. फिर एडवर्टीजमेंट कंफ्यूजेस द बायर्स. एक ही शैम्पू का एडवर्टीजमेंट आप देखो कितनी बार आता है, फिर अलग अलग ब्रांड के आते हैं, कौन सा शैम्पू यूज करें पता नहीं. बजाय इंफॉर्मेशन के हमें तो ये कंफ्यूज कर देता है कि नहीं? समटाइम इट इनकरेज द सेल ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट्स. क्वालिटी नहीं है प्रोडक्ट में, बट चूंकि वो इतनी बार एडवर्टीजमेंट उसका आ रहा है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, हम उसको खरीदने लग जाते हैं. नहीं, आप देखो जो भी ऐसे एडवर्टीजमेंट होते हैं उसका जो कंटेंट होता है वो भी वैसा ही होता है. आर यू सीइंग दिस ऑन स्क्रीन? यस, नो? यस सर. Yes, sir. इंफीरियर प्रोडक्ट्स को इनकरेज करता है. कैसे? आप देखो कोई भी प्रोडक्ट जो एडवर्टीजमेंट आता है उसका क्या आता है कि इस प्रोडक्ट को यूज करने से ये फायदा होता है. ये आप जैसे हॉर्लिक्स पियोगे तो ये हो जाएगा, बॉर्नविटा तो ये हो जाएगा, है ना. या और भी जो प्रोडक्ट आते हैं दंत कांति, ये सब वो दिखाते हैं अगर आप इसको यूज करोगे, च्यवनप्राश खाओगे तो ये हो जाएगा, है ना. बट कोल्ड ड्रिंक का जब एडवर्टीजमेंट आता है उसमें क्या दिखाता है? चलो कुछ तूफानी करते हैं. हर घूंट में स्वैग है सर. है ना. तो उसमें क्या ऐसे वो सब ऐसे ही हवा हवाई बात करते हैं. नहीं, यहाँ से उछल जाओ, वहां से कूद जाओ, यहाँ से कूद करके Yes, sir. कर दो, और फिर उसमें नीचे लिख करके आ जाता है ये सब स्टंट जो है वो नकली हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं वो करते हैं इसको, तो आप इसको प्लीज कॉपी नहीं करें. नहीं, Do not try this at home. हाँ. सो एंड सम एडवर्टीजमेंट आर इन बैड टेस्ट, है ना. कुछ एडवर्टीजमेंट तो ऐसे होते हैं जब वो आ जाते हैं तो हमको या तो चैनल बदलना पड़ता है या उठ के जाना पड़ता है. नहीं, वो अच्छा नहीं लगता सबके साथ बैठ करके देखना. आप देखो जैसे यहाँ पर ही एक एग्जाम्पल के लिए हमने बड़ी मुश्किल से ऐसा ढूंढा कि कौन सा तुम्हें दिखाया जा सकता है. तो आप देखो इसमें क्या दिखा रहा है, व्हेन ऑर्डिनरी सोप जस्ट वोंट डू, तो डेटॉल जो है वो कर देगा. डेटॉल क्या कर रहा है? कैन यू सी इन दिस फोटो? यस सर. मर्डर. हाँ, मर्डर करके, और ये पूरा खून खून इतना. हाँ, ये अगर थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखो तो जी घबरा जाएगा. नहीं, तो इट इज नॉट इन गुड. Yes, sir. So understood about the advertisement. Now let us talk about personal selling. Personal selling is what? Well, like here you have come to a shop and this advertiser or this salesman convincing the people to buy the product. So it involves oral presentation of message in the form of conversation with one or sometime more prospective customer. Correct? For the purpose of making sales. So we call it personal selling.
व्हाट आर द फीचर्स? अब देखना बड़े आसानी से आपको समझ आ जाएगा। वो इम्पर्सनल था, ये पर्सनल है। इसका मेरिट फ्लेक्सिबिलिटी, सॉरी, इट डेवलप्स द रिलेशनशिप। इससे हम चूंकि डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो हम एक रैपो स्टैब्लिश करते हैं, रिलेशनशिप बनता है। मेरिट्स अगर देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, हम अपने जिस तरह का कस्टमर होगा वैसा बात कर सकते हैं। यस नो? यस सर। फिर तुरंत फीडबैक भी मिल जाता है, डायरेक्ट फीडबैक है इसमें। वेस्टेज बहुत कम है। 20 जगह अगर हम विजिट करेंगे, 20 कस्टमर से बात करेंगे तो उसमें से 8-10 तो खरीद ही लेते हैं, लेकिन एडवर्टीजमेंट आप हजारों को दिखाएंगे तब 2 आदमी 4 आदमी खरीदेंगे नहीं। क्या रोल है इसका बिजनेसमैन के लिए? इट्स अ वेरी इफेक्टिव प्रमोशनल टूल। ये टूल ऐसा है जिसको आप बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं, इट इज फ्लेक्सिबल। फिर वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स इसमें कम होते हैं, कंज्यूमर का अटेंशन हमें ज़्यादा मिलता है, लास्टिंग रिलेशनशिप है, पर्सनल रैपो बना सकते हैं, ये सब इसके इम्पॉर्टेंस हैं। एक और बात, इट इज़ वेरी हेल्पफुल वाइल इंट्रोडक्शन स्टेज में आप होते हैं उस प्रोडक्ट के। इंट्रोडक्शन स्टेज का मतलब जब हमने प्रोडक्ट को लॉन्च किया होता है, बाद में वो ग्रो कर जाएगा, जब जो ज़्यादा लोग खरीदने लग जाएंगे उसको, तब ये ग्रोथ स्टेज पे होगा। फिर मैच्योरिटी स्टेज पे आता है, फिर ये डिक्लाइन करने लगता है। ये सभी प्रोडक्ट लाइफ का एक साइकिल होता है। तो अगर आप इस स्टेज पे हो, इंट्रोडक्शन स्टेज पे, तो पर्सनल सेलिंग इज वेरी गुड। कस्टमर के साथ में आपका लिंक बन जाता है, रैपो स्टैब्लिश हो जाता है, राइट। कस्टमर के लिए क्या एडवांटेज है? इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द नीड्स। फिर मार्केट इंफॉर्मेशन, चूंकि जिस आदमी से हम पूछ रहे होते हैं वो एक्सपर्ट है, तो वो हमें उसका एक्सपर्ट एडवाइस भी देगा, हमारी नीड को आइडेंटिफाई करके हमें जवाब देगा कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, तो अकॉर्डिंगली ही विल सजेस्ट द प्रोडक्ट। सो विल गेट द एक्सपर्ट एडवाइस, देन ही कैन इंट्रोड्यूस द कस्टमर्स, माने कस्टमर को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, अच्छे से समझा सकता है कि आपको ये प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए। सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट है पर्सनल सेलिंग का? इट कन्वर्ट्स लेटेस्ट डिमांड को कन्वर्ट कर देता है सेल में। फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। फिर सेल्स पीपल मोबाइल होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो उस कारण से हमारी ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलता है। कैरियर अपॉर्चुनिटी हम बता चुके। और प्रोडक्ट का स्टैंडर्डाइजेशन भी होने लगे, क्योंकि हम कंजम्पशन जो पैटर्न है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी लाना शुरू कर देते हैं इसको यूज करते हुए। तो ये हमारा इंपॉर्टेंस हो गया सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के लिए क्या है, कंज्यूमर के लिए क्या है, और बिजनेसमैन के लिए क्या है। 3 तरीके से ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो यू शुड नो ऑल दीज आंसर्स, करेक्ट। So next day we would be talking about the next promotion mix, okay, sales promotion के बारे में, और एक और पॉइंट है वो कल बात करेंगे। So that's all for today. Thank you very much. Do you have any questions? Sir, attendance. Sorry. Attendance. Please quickly on Google Classroom just write there present sir. Very quickly. I would see that. I am seeing how many are present today. I counted and I will check it. Okay, thank you. 13 students are present. Bye bye. Sir, I am messaged on the link you send. I message on that. No, don't send me on that. Write in Google Classroom comment box. In